Hello everyone, again welcome back to my YouTube channel, and today we are having someone very special, Assistant Professor and Associate Dean Mr. Sami Anand Sir, Head and Training Placement Cell, School of Computer Science and Engineering, who has taught over more than 10,000 of students, and lakh of students are following his guidance. He is role model for thousands of students who are learning and growing in the field of computer science and engineering. So now we are about to start our podcast. It is very interesting regarding the challenges that the students are facing in colleges. So let us begin with some of the amazing concepts that the students have approached. Okay, so tell me your name. So my name is Anveshna Singh and I'm in second year BTech CSE. Okay. The major significant problem would be placements. It's like there's a decline in jobs and the intake of employees in general is just decreasing. So मेरे को डर है कि placement मिलेगी नहीं मिलेगी. That's a lot of pressure. And few minor problems like I have overcommitments. It's like मैं dance singing सब करना चाहती हूँ but I have to manage studies as well. So I'm quite I need to strike the right balance. That's what. Okay. Thank you. Okay. So tell me your name and you are in which year? My name is Venkat Naidu. I'm currently pursuing BTech CSE second year and I am from Andhra Pradesh. Okay, so tell me what are the challenges you are facing in your academics? Basically I came here for exploring myself in all extracurricular activities and instead of my academics. But here there are lot of academic pressure. Due to that, I left my all extracurricular activities because recession is going on outside. So that for placement also I am feeling and I will get placement or not. I am thinking that. Okay. Thank you. You will be placed. Hello everyone. Again, welcome back to my podcast show. And today I am shooting my new podcast show with Deputy Dean of our University of our CSE branch, Mr. Sami Anand sir. So hello sir, welcome to my channel. Good. Alok, I would first like to congratulate you on the initiative that you have taken, and it's good that students are taking such initiatives. ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं. Podcast is something which is very informative. तो आप लोग early career पे ये चीज़ शुरू कर रहे हो तो वो अच्छी चीज़ है, and I want to support it, and that's why I'm here. Please go ahead and ask anything you want. Thank you so much sir. So मैं अब बताना चाहता हूँ स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस में फील हो रहा है सर. अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ये अब पॉडकास्ट जो है पर्टिकुलरली मैं क्यों कर रहा हूँ. मैं जानता हूँ सैमी आनंद सर को, और मैं जिसको भी सर बोल रहा था कि मेरा पॉडकास्ट है सैमी आनंद सर के साथ, इवन प्रोफेसर्स को भी क्लास में वो बोल रहे थे सैमी आनंद सर के साथ, वो कैसे पॉसिबल हो गया. मतलब वो तो इतना बिजी रहते हैं, टाइम मिलता है. और मैं आप लोग को भी बता रहा हूँ समर वेकेशन के पहले 3 महीने पहले मैंने सर को अप्रोच किया था पॉडकास्ट के लिए, एंड आज जा करके फाइनली पॉडकास्ट शूट हो रहा है. तो सर अब सर के बारे में हम जानेंगे कि सर का पूरा जो लाइफ है, चाइल्डहुड, और इतना जो सर ने सक्सेस अचीव किया उसके बारे में. सर आप अपने बारे में कुछ बताइए. ऑनेस्टली मैं ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था पहला, बट चलो क्योंकि आपने पूछा है. सो माई लाइफ हैज़ बीन अ वेरी डिफरेंट वन. डिफरेंट इन द सेंस, अगर आप मेरे किसी भी टीचर से स्कूल के जाके पूछोगे, या अगर आप मेरे किसी स्कूल फ्रेंड से जाके पूछोगे कि सैमी बिकेम अ टीचर एंड नाउ एज अ डिप्टी डीन, सो वो 1 मिनट के लिए शायद से उसको विश्वास ही ना करे. मतलब इन माई स्कूल डेज आई वॉज अ लॉट नोटोरियस. बहुत शरारती बच्चों में काउंट होता था. 6th क्लास तक मैं सबसे शरीफ बच्चों में काउंट होता था, टॉपर में काउंट होता था. 6 के बाद जो भी लाइफ में एक चेंज आता है, एक हम अपना ट्रांजिशन कह लो, थोड़ा सा हम मैच्योर होते हैं, दुनिया को अपने एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं. उस टाइम आई बिकेम अ बिट नोटोरियस शरारती बच्चों में. बट 10th क्लास जब आई तो वो सारी चीज़ें चेंज हो गई. 10th के बाद आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन. उसमें मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे जो मैं अभी तक मस्ती कर रहा था कर ली, बहुत ज़्यादा कर ली. इतनी तो शायद कॉलेज जाके भी नहीं करी मैंने जितनी मैंने 6 से 10 में कर ली. बट फिर 10th बोर्ड्स के टाइम पे मैंने अपने आप को चेंज किया. वहाँ पे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया, आई वुड से, जो मैंने 6th में छोड़ दिया था. देन 10th, देन आई डिड माई 12th अगेन स्कूल से. नो स्पेशल कोचिंग, नो IIT कोचिंग एंड एनीथिंग. एट आवर टाइम मतलब देयर वर 2 एग्जाम्स. IIT JEE होता था, AIEEE भी होता था. AIEEE में मेरा रैंक बेटर था, JEE में थोड़ा कम था. बट देन आई ट्राइड फॉर अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़. I got seats in some of the NITs, but was not computer science.
देन आई थॉट कि कहाँ जाना है, एंड समहाउ आई लैंडेड अप इन LPU because of a family connection, I would say, and they gave a good feedback कि नहीं, this is a new university but अच्छी है, जाओ. And then I did my BTech, fell in love. I did my MTech from LPU, and then I had a very small stint with NIT Hamidpur, where I was initially given an interview, was shortlisted for the contractual job of assistant professor. Getting to that success, university asked that वहाँ पे अगर टीचर बनना है, यहाँ पे क्यों नहीं टीचर बन रहे? अगेन आई गेव अ थॉट, वहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल है, यहाँ परमानेंट है, स्कोप ऑफ ग्रोथ देख के वहाँ का थोड़ा वर्किंग स्टाइल मुझे डिफरेंट लगा, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट किया मैंने. When I started as a faculty, there was a lot of things I needed to learn. उस टाइम पे मुझे काफ़ी कुछ सीखना पड़ा. Back in 2012, लर्निंग कर्व बहुत था. स्टूडेंट की तरह पढ़ते थे, टीचर की तरह पढ़ के बच्चों को पढ़ाना बहुत डिफरेंट होता है. जो चीज़ें शायद से हम एज अ स्टूडेंट नहीं सोच पाते थे, जब फैकल्टी के एंगल से पढ़ते हैं तो शायद से हम वो सोच पाते हैं. तो वो चीज़ें थी. एंड देन इन 2013 आई वॉज गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी बाई यूनिवर्सिटी because of how I used to work, to take over the entrepreneurship and the placement cell. So I started working with them, and then slowly, steadily, I did well and got the opportunity to head the entire training and placement for computer science institute. तो वहाँ से आज उस चीज़ को हुए 5-6 साल हो गए हैं, and it's going good as of now, I would say. Good का पैरामीटर मेरा सिर्फ यही है कि कितने बच्चों की लाइफ में हम वो इम्प्रूवमेंट लेके आ पाए. गुड का पैरामीटर ये नहीं है कि मेरी कितनी ग्रोथ हुई, मेरी कितनी अप्रेजल या इंक्रीमेंट लगे. गुड का पैरामीटर सिर्फ यही है कि जितने स्टूडेंट्स उस एक्सपेक्टेशन से यूनिवर्सिटी में आते हैं, उन एक्सपेक्टेशंस को हम कितना पूरा कर पाते हैं. एंड 100% तो हमने कभी भी नहीं क्लेम किया, ना ही करेंगे जब तक 100% होगा नहीं. बट 90+ पे हम हार्ड वर्क को कर पाते हैं. सो दैट इज समथिंग विच इज अ बिट फुलफिलिंग. थैंक यू सो मच सर. सो सर मैं पूछना चाहता हूँ, लाइक अभी आप बोल रहे थे 6 से 10 तक आप बहुत नोटेरियस थे. सर आप ऐसा क्या करते थे? कोई एक्सपीरियंस शेयर करना? बहुत कुछ है, काफ़ी कुछ तो बोल भी नहीं सकता, ठीक है, बट वो सबने किया होगा अभी जो कॉलेज लाइफ में आके लोग करते हैं. मेरा एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा था चीज़ों को, मैं ये कहूँगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से क्यूरियस बहुत था. मेरे शरारती होने का रीज़न भी क्यूरियोसिटी है, मेरे सक्सेस का रीज़न भी क्यूरियोसिटी है आलोक. क्योंकि मैं हर चीज़ में जब कुछ भी होता था, मेरा क्यूरियोसिटी लेवल वो था कि मुझे सब कुछ जानना, आई वॉन्ट टू गो इन डिटेल. तो वो क्यूरियोसिटी की वजह से काफ़ी कुछ था. अब जैसे स्टूडेंट्स स्कूल में क्लासेस बंक करते हैं, तो हम भी क्या करते थे, थोड़ा सा एक डिफरेंट इनोवेटिव वे था, यहाँ पे नहीं बोल सकता, बट हाँ, हम स्कूल में क्लासेस बंक करते थे. वो तो हर एक ने थोड़ा मोड़ा किया होगा. स्कूल बंक करके जाना, वो भी किया हुआ दोस्तों के साथ, ऐसा नहीं बोलूँगा नहीं किया. बट एक टाइम आया था लाइफ में, क्लास 10th में, जैसे मैंने कहा, जब मुझे समझ में आया कि ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इससे मेरी लाइफ में कुछ एडिशन नहीं हुआ. वहाँ से वो चेंज लाना ज़रूरी था, जो मैंने सीखा. शरारतों में दोस्तों यारों के साथ घूमना, ट्यूशन के लिए निकले हैं, मूवी देखने चले गए, जो सब ने किया है वो तो किया ही है, उससे काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा भी है. बट हाँ, उन सब चीज़ों को करके लाइफ में बाद में मुझे आज उसका कोई फ़ायदा दिखता नहीं. जब मैं आज अगर वापस जाऊँ तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने उस पीरियड को भी यूटिलाइज किया होता, द लाइफ कुड हैव बीन डिफरेंट. बट वो कुड हैव बीन पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता, बिकॉज आई एम अ फर्म बिलीवर कि जो आप पॉजिटिवली काम करते हो, वेयर आई एम टुडे, आई वॉज मेंट टू बी हियर. शायद से वो करने की वजह से भी यहाँ पे हूँ. तो हर एक पार्ट होता है, बट कब समझना है और कब उस चीज़ को चेंज करना है अपनी लाइफ में, वो बहुत ज़रूरी है. तो वो एक टर्निंग पॉइंट जिसको कहते हो, मेरी लाइफ में क्लास 10 था. कई बच्चे क्लास 10 में नहीं आ पाते क्योंकि आजकल प्रेशर डिफरेंट है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट है. पेरेंट्स पैम्पर भी करते हैं बच्चों को, ईज भी करना चाहते हैं, बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन भी देना चाहते हैं, साथ साथ वो चाहते हैं कि बच्चे को सब कुछ ठीक रहे. बट एवरीथिंग डज नॉट गो हैंड इन हैंड. तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें समझना है कि वो टर्निंग पॉइंट, वो लाइफ का लेसन जो समझाना है मैच्योरिटी का, वो कैसे समझाना है बच्चों को.
सर लाइक जब हम लोग 10th वगैरह में रहते हैं तो उस टाइम तो हम लोग को उतना समझ नहीं आता, जो आपने बोला ना सेम मुझे इस, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ की है, बहुत स्कूल से भी बहुत ज़्यादा डांट खाया हूँ, सब कुछ मेरे साथ भी हुआ था। बट वही 10th के बाद ना ICSE बोर्ड से था मैं सर, तो सर उसमें रेड कार्ड वगैरह मिलता है, तो मुझे एक रेड कार्ड मिला। उसके बाद से सर मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया। सो सर लाइक हम लोग जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे आप हो गए, जैसे हम हो गए सर, हम लोग ने इम्प्रूव कर लिया। बट वही हमारे साथ के कुछ और फ्रेंड्स होते हैं सर लाइक वो इम्प्रूव नहीं करते, वो और उस लाइन में जाते जाते हैं। तो सर उनके लिए कुछ आप बोलना चाहेंगे लेकिन कि क्या सोच करके इम्प्रूव करें? लाइक मेरे साथ था कि मेरे को देखना था अपनी फैमिली कंडीशन, घर को देखना था, मम्मा की वजह से मैं ठीक हो गया, मैंने शैतानी किया। फिर आपका भी कुछ रीज़न होगा सर, तो सर उन लोग के लिए सर आप क्या बोलना चाहते हैं? अपने करियर पे फोकस करें। ऐसा कोई रीज़न नहीं था मेरी लाइफ में मैं कहूँ जिसकी वजह से मैंने कुछ ऐसा चेंज किया। जस्ट एक टर्निंग पॉइंट यही था कि आई हैड अ टेस्ट। मैंने कहा आज तक कभी कोई टेस्ट फेल नहीं किया था उससे पहले। तो 10th का एक प्रैक्टिस टेस्ट था हमारा, जिसको प्री बोर्ड्स कहते हैं। उसमें हमारा जो साइंस का सब्जेक्ट था उसमें आई गॉट वेरी लो मार्क्स, लेस देन 50। सो 43, 44 आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट लेस देन 50 थे एंड 40-50 के बीच में। दैट वाज समथिंग अ बिट हार्श टू मी कि मतलब वो कैसे हो गया। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं रहूँगा, बट कभी भी मेरे मार्क्स मैंने 60 के नीचे या 70 के आसपास ही को रखने की कोशिश करी है। तो वो एक कॉल था कि वो कैसे हो गया। फिर जब मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया तो मैंने देखा कि हाँ कई चीज़ें हैं जो मैंने ओवरलुक करके बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान दिया। एंड मैं कहूँगा उस टाइम पे सपोर्ट सिस्टम होना एक बहुत ज़रूरी है। सो जब हम ये पूछते हैं कॉलिंग, ये इंट्रोस्पेक्शन, ये तभी पॉसिबल है या पेरेंट्स या फ्रेंड्स। अपने आप कई बार करना डिफिकल्ट होता है, मैं मानूंगा, एवरीवन कांट डू इट, बट वहाँ पे ये दोस्तों का और ये फैमिली मेम्बर्स का रोल बहुत होता है कि सपोर्ट करना, सपोर्ट करके समझाना और ये समझना कि एक दिन में बदलेगा नहीं। दोस्तों का बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने दोस्त वैसे चुनते हो जो आपको दूसरी चीज़ों की तरफ लेके जाते हैं और आपको सपोर्ट इस चीज़ में नहीं करते कि कैसे इम्प्रूव करना, तो आप गलत रास्ते पे ही रहोगे। तो अगर वही बात है जो सब लोग कहते हैं, दोस्त चुनने बहुत ज़रूरी है कि कैसे आपको दोस्त चुनना। अगर आपको लगता है कि कोई दोस्त नहीं हेल्प कर रहा आपकी ग्रोथ में, तो ठीक है, अगर वो दोस्ती आप कैजुअल रख लो और दूसरा एक कोई अच्छा दोस्त ढूंढ लो। दोस्ती तोड़ने को नहीं कहना, बट हाँ उससे हाई हेलो रखो, दोस्ती यारी रखो, ज़रूरत पड़े कोई तो हेल्प करो सही चीज़ों में। गलत चीज़ों में हेल्प करने के लिए ना करके आप कभी किसी का गलत नहीं करोगे, हमेशा उसका भला ही करोगे। ओके, थैंक यू सो मच सर। सो सर नाउ आई एम मूविंग टू माय फर्स्ट क्वेश्चन। सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरे माइंड में यही है कि सर फर्स्ट ईयर वालों के लिए सर रोड मैप क्या होना चाहिए? सर लाइक उनको, जब हम लोग लास्ट ईयर मैं भी यूनिवर्सिटी में आया था तो सर मैं एकेडमिक्स में भी था, बट मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया DSW में, और मैंने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया, काफ़ी कुछ किया मैंने। बट ये सर उसकी वजह से मेरा CGPA भी डाउन हुआ फर्स्ट सेमेस्टर में। उसके बाद फिर मैंने इम्प्रूव किया तो अभी 7.5 से 8 है अभी। बट सर अभी क्या मतलब ये अप्रोच सही है, फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करें कि बाद में करें कॉलेज लाइफ में? बहुत अच्छा सवाल है। इसको थोड़ा मैं डिफरेंट एंगल से लूँगा। ये सारी प्रॉब्लम का एक मेजर रीज़न है रूटीन और टाइम मैनेजमेंट। यस सर। हमें जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी भी स्टार्ट करो, 12th में, 10th में, फर्स्ट ईयर में, इट्स नेवर लेट। जब स्टार्ट करोगे दैट्स द राइट टाइम टू स्टार्ट, जब आपने कर लिया। प्रॉब्लम इज रूटीन एंड टाइम मैनेजमेंट विद स्टूडेंट्स। आप एक प्रॉपर रूटीन नहीं बना पाते और एक टाइम मैनेजमेंट, एक शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाते। अगर एक आप अच्छा रूटीन बना लो और फिक्स रूटीन बना लो कि मैंने चाहे जो मर्जी हो ये चीज़ यही करनी है, एंड फिर वो स्कोप बना लो एन्जॉयमेंट का उस रूटीन में। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ मूवीज, सीजन जो आप लोग भी देखते हो, एंड मैं कई बार जब अपनी सबसे ख़राब जो कहोगे शरारती क्लास में जाता हूँ, तो मैं उनसे सबसे पहला चैलेंज ये करता हूँ कि जितनी मूवीज़ मैं देखता हूँ, जितने सीजन्स मैं देख चुका हूँ और देख रहा हूँ पैरेलली, आपको मुझे बीट करना है। मैं पढ़ाई में कम नहीं रखूँगा, आपको पढ़ाऊँगा उसी तरीके से, पर आपने CA में भी उतने नंबर लेके आने हैं। तो एक चैलेंज करता हूँ। अब मेरा क्या है कि मैंने वो शेड्यूल बना रखा है कि मैंने इस 1 घंटे में एक मूवी या एक सीजन का एक एपिसोड देखना है, और कोई नई मूवी आ गई है तो उसके लिए स्कोप क्रिएट करना है। तो मैंने कुछ काम पहले करने हैं, कुछ बाद में करने हैं। वो एक रूटीन फिक्स्ड है। उस रूटीन से लेफ्ट राइट होने के लिए बहुत डिफिकल्ट है।
अब इसमें आएगा कि कभी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, कभी सर कुछ और आ जाता है, तो रूटीन तो हिलती है। यस, आपको रूटीन का मतलब ये नहीं है कि 7 के 7 डेज एग्जैक्ट सेम रूटीन है। आउट ऑफ 7, 4 to 5 डेज आपकी रूटीन सेम रहनी चाहिए। बाकी अगर कुछ अकोमोडेट करने के लिए, कुछ कंपनसेट करने के लिए आपको कोई एक एक्टिविटी छोड़नी है, आपने कुछ और एक्टिविटी करी, बट उस एक्टिविटी को बैकलॉग नहीं रहने देना। फिर यू हैव टू फाइंड आउट टाइम कहीं और से कि ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ के मैं वो एक्टिविटी पूरी कर लेता हूँ। तो वो एडजस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, वो एक शेड्यूल और एक रूटीन बनाना। क्योंकि घर पे होते थे या किसी कोचिंग सेंटर में पहले थे, कोटा या कहीं पे भी, वहां पे एक रूटीन बना हुआ था। अब यहाँ पे आप फ्री होते हो, तो आप रूटीन बनाना छोड़ देते हो। आप सुबह किसी फ्रेंड ने कहा क्रिकेट खेलने चलते हैं, तो सुबह क्रिकेट खेलने चले गए, फिर थक गए, क्लास में सो रहे हो। शाम को किसी ने कहा आओ बाहर डिनर करने चलते हैं, तो फटाफट उठे और चेंज कर लिया। तो वो जो हैपोजिट फॉर्मेट रहता है, उसकी वजह से ये चैलेंज आता है कि आप अपनी हर एक चीज को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। सारी चीजों का टाइम रखो, एक्सप्लोर करो, दोस्तों के साथ घूमने का टाइम रखो, बट वो टाइम स्लॉट्स फिक्स रखो, और उससे बहुत फायदा मिलेगा। और एक्सप्लोर सिर्फ फर्स्ट ईयर में नहीं करना, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, थ्रू आउट योर लाइफ करना। यूनिवर्सिटी में स्क्वैश कोर्ट्स हैं, आपको पता होगा। मैं हमेशा से देखता था स्क्वैश। मेरे चाचू ने मुझे एक स्क्वैश स्क्वैश रैकेट गिफ्ट किया था व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, और हमारे स्कूल में तब स्क्वैश कोर्ट था और फिर बंद हो गया इमीडिएटली। प्रॉब्लम आ गई, अब मैं यूज़ नहीं कर पा रहा था। अब मैंने दोबारा उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया। इस स्टेज पे आके भी वो एक्सप्लोरेशन रुकनी नहीं चाहिए। कोई एज या कोई टाइम नहीं है कि इस टाइम तक एक्सप्लोर करना फिर रोकना है। कंटिन्यूअस, इट्स नीडेड, करते रहो। एक्सप्लोर करना ही, वही आई सेड ना, क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो क्यूरियोसिटी रहेगी, आप एक्सप्लोर करते रहोगे। हम लोग भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा सर, बट एकेडमिक प्रेशर यहाँ बहुत ज़्यादा है एलपीयू में, क्योंकि यहाँ का जो करिकुलम है और यहाँ का टाइम टेबल है, हमेशा सीए, मिड टर्म्स, एंड टर्म्स, हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो सर इसको फिर कैसे हैंडल करें, इसमें कैसे हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं? कहीं कहूँगा कि मुझे पता था कि कुछ ऐसा सवाल पूछोगे। ऐसे जैसा कि मैंने कहा, यू हैव योर डे शेड्यूल, 6 to 8 आवर्स स्लीप के लिए तो फिक्स रखो। एक सोने का टाइम पक्का करना पड़ेगा, जो कि कॉलेज में करना मुश्किल है। अगर रात को 1 बजे भी सोना है तो 1 बजे सोना है, मतलब वो एक टाइम फिक्स है कि 1 बजे से आगे नहीं जाना। पहले तो वो एक स्लीप पैटर्न अपना सेट करना है, और मिनिमम 6 to 8 आवर्स स्लीप इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। वो है 6 घंटे तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। वो जब आपने पैटर्न फिक्स कर लिया, जो आपकी क्लासेस है, अगर आप क्लासेस में 80% अटेंटिव रहते हो, तो 80% अटेंटिव कह रहा हूँ, 100% नहीं, आपका आधा काम हो जाता है। उसके बाद सिर्फ एक रिविजन लगती है हर एक सब्जेक्ट को, और थोड़ा टारगेटेड अप्रोच करना पड़ता है। आई ऑलवेज फील कि जो सारे 10 CGPA वाले स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे तो हैं, बट वो टारगेटेड अप्रोच वाला कुछ स्टूडेंट जिसने एक्स्ट्रा भी किया है, और वो लेट्स से 9 CGPA भी है, ही इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू अ 10 CGPA। मतलब मैं ये नहीं कह रहा उससे बेटर है, पर जिसने 9 CGPA लिया है, साथ में कुछ एक्सप्लोर भी किया है, वो 10 CGPA की इक्विवेलेंट है अगर 10 CGPA वाले ने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया और उसने सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया। बिकॉज लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ एक्सप्लोर करना, इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको कहा कि टाइम शेड्यूल बनाना है। टाइम शेड्यूल में आपकी 9 to 5 क्लासेस हैं, आपको पता है। 9 to 5 को छोड़ के 5 o'clock के बाद 1 घंटा रेस्ट करो, जो मैं फॉलो करता हूँ। मैं आपको अपना, मेरा भी 9 to 5 ही शेड्यूल है। आप 9 बजे आते हो, मैं भी 9 बजे आता हूँ, आप 5 बजे आते हो, मैं तो कई बार लेट भी जाऊँगा। बट अगर 5 बजे गए तो उसके बाद अगर या तो फ्रेंड्स के साथ मस्ती करनी है तो 2 घंटे मस्ती के लिए रखिए कि 7 बजे तक मस्ती करी, या 5 बजे जाके रेस्ट कर लिया, 5 से 6:30 सो गए, 7 बजे तक सो गए, फिर उठे, फिर अपने एक मस्ती का टाइम रखा, 7 से 8 खेल लूंगा या 7 से 8 मैं रिविजन करूंगा, क्योंकि इस टाइम बाकी लोग कुछ और कर रहे होंगे। तो 7 से 8 पढ़ाई कर ली, 8 बजे ब्रेक ली, डिनर वगैरह कर लिया, फिर फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर ली, फिर सोने से पहले 2 घंटे और पढ़ लिया। अब जो ये सोने वाला टाइम है वो कभी कभी कंपनसेट हो जाएगा। पढ़ाई को मॉर्निंग में शिफ्ट कर लो कि इस टाइम पे मैं DSW आऊँगा, एक्सप्लोर करूँगा। स्पोर्ट्स खेलना है तो मैं स्पोर्ट्स खेलने जाऊँगा। जो टाइम आपके स्पोर्ट्स की एक्टिविटी का है, क्रिकेट जनरली लोग सुबह खेलते हैं तो सुबह स्पोर्ट्स खेल लिया, शाम को पढ़ाई एडजस्ट। सो वो टाइम शेड्यूल एडजस्ट होकर के वंस दैट इज फाइनलाइज, आपका सेट हो गया और वो रूटीन आपने फॉलो शुरू कर दिया, फिर ये सारी चैलेंजेस जो आप बता रहे हो वो खत्म हो जाएंगे।
ओके, थैंक यू सो मच सर. सो सर, लाइक यहाँ पे एलपीयू में अच्छी प्लेसमेंट के लिए सर कौन सा डोमेन चूज करना चाहिए सर? फुल स्टैक, वेब डेवलपमेंट और डेटा साइंटिस्ट सर? ओके, सबसे पहले तो डोमेन से पहले सबसे इम्पोर्टेंट है एनी डोमेन, बेसिक्स आर इम्पोर्टेंट. यू कुड बी अ वेरी गुड डेटा साइंस गाय, आपने टैब्ल्यू कर लिया, आपने आर प्रोग्रामिंग कर लिया, आपने पाइथन के साथ कर लिया, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स कर लिया, बट यू आर वेरी बैड विद एसक्यूएल, कोई कंपनी आपको सिलेक्ट नहीं करेगी. यू आर नॉट गुड विद बेसिक प्रोग्रामिंग, कोई कंपनी आपको सिलेक्ट नहीं करेगी. स्किल से पहले बेसिक्स आता है, क्योंकि बेसिक्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स. अगर मेरे बिल्डिंग ब्लॉक्स वीक हैं तो मेरे स्किल्स कितने भी मैं ऐड करता रहूँ वो कभी भी उस लेवल के नहीं हो. बेसिक्स करें पहले, सो सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++, जावा, सी, पाइथन, समथिंग विच आई हैव अ गुड कमांड ऑन. देन देयर आर फ्यू सब्जेक्ट्स, डाटाबेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर. कंप्यूटर आर्किटेक्चर अब तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर की तरफ जा रही है. सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, नेटवर्किंग हो गया, एंड सिमिलरली देयर आर फ्यू आउट ऑफ दोज ऑल 30-40 ऑड सब्जेक्ट्स, कुछ 10 से 15 सब्जेक्ट्स होंगे जो इंपॉर्टेंट है. उन 15 सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है पहले, उसके साथ साथ स्किल डेवलप करनी है. कौन सी स्किल में सबसे ज़्यादा जॉब है? इफ़ यू आस्क मी, मैं हमेशा एक ही आंसर देता हूँ जो मेरा कंटिन्यूस रहा है. हर स्किल में बेस्ट जॉब्स अवेलेबल है, बट वो बेस्ट जॉब्स उसके लिए हैं जिसने वो स्किल इंटरेस्ट से किया है. अगर आप किसी स्किल में ये देख के जाओगे कि इस स्किल करके हाईएस्ट जॉब मिलती है, तो वो आपको हाईएस्ट जॉब नहीं मिलेगी. उसका रीज़न ये है क्योंकि आप स्किल को जॉब लेवल पे देख के आए हो, कोई उस स्किल को इंटरेस्ट लेवल पे देख के आया. इंटरेस्ट वाला एक्स्ट्रा टाइम देके एक्स्ट्रा मेहनत कर पाएगा, आप उतनी ही मेहनत कर पाओगे जितना आप जॉब के लिए सोचोगे. तो इंटरेस्ट वाले वुड हैव अ बेटर ऑप्शन, बेटर चांस ऑफ बेटर गेटिंग अ बेटर पैकेज. क्यों? क्योंकि उसने इंटरेस्ट से मेहनत किया. तो इंटरेस्ट वाली फील्ड को एक्सप्लोर करो. एवरी फील्ड हैज़ गुड अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी. ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है. अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं है या वो अच्छा पैकेज नहीं है तो शायद से वो फील्ड हम पढ़ा ही नहीं रहे. थैंक यू सो मच सर. एंड सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, कैन यू गिव सम टिप्स अबाउट लिंक्डइन कनेक्शन एंड लाइक नेटवर्किंग कितना इंपॉर्टेंट है कॉलेज लाइफ में? क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में भी हमको बोला गया था कि लिंक्डइन पे फ्रेंड्स बनाओ. सर ये इसके बारे में. आई वुड लाइक टू करेक्ट यू देयर, मतलब थोड़ा सा ठीक करूंगा. लिंक्डइन पे फ्रेंड्स नहीं बनाने, लिंक्डइन पे नेटवर्क बनाना है. फ्रेंड्स फेसबुक और इंस्टाग्राम पे है. नेटवर्क क्यों इंपॉर्टेंट है? अगेन यू आस्क मी कि वो टर्निंग पॉइंट कैसे आएगा लाइफ में, एक सवाल पूछा था आपने अभी. तो जब आप लिंक्डइन पे अपना एक नेटवर्क बनाते हो, अच्छे अच्छे लोगों से कनेक्ट करते हो, वो अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं. कौन सी चीज़ किसको कब कैसे क्लिक करेगी नहीं पता होता, बट जब आप अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ते हो तो जो भी क्लिक करेगा वो अच्छा क्लिक करेगा. ये तो मानते हो प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है. अगर मैं सब कुछ अच्छा पढ़ रहा हूँ तो जो भी मेरे को क्लिक करेगा या जिससे भी मेरा कुछ आई वुड से कनेक्शन सेट होगा वो अच्छा ही होगा. सो यू स्टार्ट नेटवर्किंग विद गुड पीपल, दे विल शेयर. वो जो शेयर करेंगे लिंक्डइन पे अपने एक्सपीरियंसेस, किसी और के सक्सेस स्टोरीज, वो हमेशा अच्छी चीज़ें शेयर करेंगे. और जब आप अच्छी चीज़ों को कंटिन्यूसली पढ़ते हो, देखते हो, समझते हो एंड चेक करते हो कि हाँ ये तो सेम स्टोरी मेरी है तो मैं भी कर सकता हूँ अगर मैं भी ऐसे करूँ, तो वंस यू आर एबल टू रिलेट देयर, वहाँ पे वो कनेक्शन सेट है, वो आपका सिंक मिल गया, वो एक क्लिक पॉइंट मिल गया, तो वो अच्छा ही होगा. तो नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है. कैसे करना है उसके लिए बहुत अलग अलग तरीके हैं. दैट वुड बी अ सेपरेट सेशन अगर हम करना चाहें तो, बट बेसिक स्टेप्स बता देता हूँ. ऑब्वियसली ट्राई टू फॉलो दोज कंपनीज विच आर योर ड्रीम कंपनीज. ट्राई टू फॉलो पीपल हु आर वर्किंग विद दोज कंपनीज. ट्राई टू फॉलो योर सीनियर्स जो उस कंपनी में हैं, और अपने सीनियर्स जो अलग अलग जगहों पे, अच्छी अच्छी जगहों पे, उनको फॉलो करो, क्योंकि उनकी स्टोरी और आपकी स्टोरी काफ़ी रिलेटेबल होगी. तो वो स्टोरी मैटर करती है. जब अगर आपको स्टोरी, आप किसी मूवी को देखते हो तो एक्साइटेड होते हो ना, यार एवरीवन वांट्स टू बाय दैट आयरन मैन मास्क, कि मैं भी आयरन मैन अगर ऑप्शन मिले तो बनना चाहता हूँ, क्योंकि आप रिलेट कर पाते हो. तो ये आपके रियल लाइफ हीरोज है जिन्होंने सेम सिचुएशन में सेम लेवल पे मेहनत करके कुछ अचीव किया. ऑब्वियसली आप उसको आयरन मैन से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि फैंटेसी है, बट उन्होंने रियलिटी में अचीव किया. तो जब आप उस स्टोरी से रिलेट करोगे तो आपको एक बहुत रिलेटेबल स्टोरी मिलेगी जिसपे आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो. तो वो बहुत ज़रूरी है. तो इसलिए अपने सीनियर्स, उन कंपनीज में काम करने वाले लोग, उनसे कनेक्ट करो और उनको सिर्फ यही बताओ, क्योंकि मेरे को
लाइफ में एक ड्रीम है कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट में वर्क करना है, मैंने गूगल में वर्क करना है, मैंने एटलासियन में वर्क करना है, एंड दैट्स वाई मैं आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, सो दैट आप जो शेयर करोगे मैं वो पढ़ना चाहता हूँ कि आप क्या शेयर कर रहे हो, एंड देन अगर मुझे कुछ अच्छा लगेगा और मैं आपसे समझना चाहूँगा तो शायद से मैं आपसे कभी एक दो बार रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे ये चीज़ समझा दो, एंड दे वुड बी हैप्पी टू लिसन कि कोई बच्चा इतने पॉजिटिवली सोच रहा है, एंड वो कभी मना नहीं करेगा। थैंक यू सर। एंड सर नाउ आई एम मूविंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि सर लाइक एलपी में इतने स्टूडेंट्स हैं, सर आप एज अ प्लेसमेंट हेड कोऑर्डिनेटर सर आप कैसे मैनेज करते हो प्लेसमेंट्स के लिए, सर कंपनीज को कैसे अप्रोच करते हैं? ये सेम क्वेश्चन आज दिन में मेरे से दूसरी बार पूछा जा रहा है। सो आज सुबह भी सेम क्वेश्चन का मैं आंसर करके हटा हूँ। सो मुझसे ये चैलेंज हमेशा पूछा जाता है कि एलपीयू की स्ट्रेंथ अच्छी है, इज अ गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, तो आप सबकी एक्सपेक्टेशन मैनेज कैसे करते हो और आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हो कि इतने बच्चों को प्लेस कराना है। पहली चीज़ तो मैं ये मानता हूँ कि मैं प्लेसमेंट कराने के लिए कभी भी मेहनत नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट। माई अप्रोच इज कि मुझे बच्चे को स्किल देना है, आई हैव टू गेट हिम ट्रेन्ड, आई हैव टू गेट हिम दैट स्किल जो कंपनीज को चाहिए। वो जो स्किल दिलाना है मैंने, उस स्किल दिलाने के लिए जो मैंने एफर्ट डालने हैं वो कितने सही है मैं उस पर फोकस करता हूँ। जो ट्रेनर आ रहा है ट्रेनिंग कराने के लिए, जो फैकल्टी क्लास में जा रहा है पढ़ाने के लिए, जो कोर्सेज हम उनके साथ शेयर कर रहे हैं कि ये मूव्स करोगे तो फ़ायदा होगा, ये पढ़ोगे तो फ़ायदा होगा, इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करो, तो जो वो रिकमेंडेशंस हमें बच्चों को देनी होती है मैं उस पर ज़्यादा काम करता हूँ कि अगर मैं वो चीज़ें बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ कि एक अच्छा ट्रेनर आके पढ़ा रहा है, मैं वही टेक्नोलॉजी बच्चे को पढ़ा रहा हूँ जो मार्केट में आज भी और आज से आने वाले 3-4 साल में भी रिक्वायरमेंट रहेगी और उसके ऊपर बच्चा इवॉल्व कर सकता है। इफ़ आई एम डूइंग दैट राइट, वो काम सही कर रहा हूँ, तो प्लेसमेंट अपने आप हो जाएगी। प्लेसमेंट को मैं बाई प्रोडक्ट मान के चलता हूँ। कई लोग प्लेसमेंट को सेंटर फोकस लेके चलते हैं, मैं प्लेसमेंट को बाई प्रोडक्ट लेके चलता हूँ कि अगर बच्चे ने पढ़ लिया, ट्रेनिंग ले ली, स्किल ले लिया, तो प्लेसमेंट तो अपने आप ले लेगा। उसमें फिर मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, कंपनी को कैंपस तक ला सकते हैं। जैसे हम बैठे हैं वैसे बच्चे को बैठना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, वहाँ पे कोई हेल्प नहीं कर सकता, सिर्फ बच्चा अपने लिए खुद की हेल्प कर सकता है। तो मैं उस हेल्प पे बिलीव करता हूँ कि मैं उस बच्चे की वो हेल्प कर दूँ कि वो ट्रेनिंग, वो स्किल, वो लॉजिक उसको क्लियर मिल जाए कि मैंने वो कैसे हैंडल करना है। अगर वो लॉजिक मिल गया फिर जो मर्जी कंपनी आ जाए बच्चे ने तो क्लियर कर लेना है। वो थॉट प्रोसेस के साथ हम आगे चलते हैं एंड उसी का एक मैं कहूँगा सक्सेस जो है वो दिखता है कि प्लेसमेंट अच्छी होती है, क्योंकि प्लेसमेंट बाई प्रोडक्ट है, स्किल, अंडरस्टैंडिंग वो की फोकस रहता है हमारा। सो सर लाइक आपको कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है जो सर आपके कोई अच्छे स्टूडेंट्स जो अच्छे प्लेस्ड हुए हो यहाँ पे? शेयर करना चाहूँगा। सक्सेस स्टोरीज तो सबने सुनी होती हैं कि 50 लाख का पैकेज लग गया, कंपनी से निकलते, कैंपस से निकले, 64 लाख का पैकेज है, 37 लाख का पैकेज है, 45 लाख का पैकेज है। अगर मैं कोई एक स्टोरी रिलेट कर सकता हूँ जो सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है समझना। समटाइम्स इन लाइफ आप पहली बार में वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। 2 स्टोरीज शेयर करूँगा। वन इज ऑफ यासिर, विच सबको पता है। He transformed his life within a span of 4 years from a 15 lakh salary to a 3 crore salary, which is a 200% hike, 20% hike, sorry, which is a very phenomenal hike that he got. So वो जो hike लिया वो मेहनत से लिया, वो रोका नहीं कि वो प्लेसमेंट लेके कि वो 15 लाख अच्छा लगा तो रुक गया। लर्निंग अर्ज कंटिन्यू रहा। ऐसी एक स्टोरी, आई विल नॉट टेक अ नेम बिकॉज वो शायद से उसको ये नाम और फेम पसंद नहीं है, तो वो हमेशा रिलेट करना ही चाहता कि उसका नाम आए। बट देयर वेर पीपल इन माई लाइफ विच आई सॉ, कैंपस से जॉब लगी नहीं, दे वेंट फॉर अ जॉब इन टू कंपनी। वहां पे उनको स्टार्टिंग सैलरी मिली 8,000 रुपीज, 8,000 रुपीज एज अ स्टार्टिंग सैलरी ऑफ कैंपस इन द ईयर 2013 आई एम सेइंग। 8,000 रुपये से स्टार्ट किया एंड अब अगर हम उसको रिलेट करें तो 10 साल हो गए, 10-11 साल हो गए। आज पैकेज होगा 40-45 लाख आराम से। एंड 40-45 लाख
इज अ वेरी गुड हैंडसम इन हैंड मतलब अगर ई सॉप्स और वो सब लगाओगे तो बहुत अच्छा पैकेज दिखेगा, बट मैं इन हैंड की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर इन हैंड पैकेज की. नाउ दे आर एट अ वेरी गुड पोजिशन. AVP हैं, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, एंड दे स्टार्टेड स्मॉल. बट अ पर्सन हु स्टार्टेड विद अ सक्सेस राइट ऑन डे वन, शायद से उसको वो एक्सपीरियंस कभी नहीं मिलेगा लाइफ में जो एक ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करके उस लेवल पे पहुंचने वाले को मिलता है. क्योंकि जब आप ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करते हो तो आप हर एक लेवल पे अंडरस्टैंड करते हुए ऊपर जाते हो. जब आप हर एक लेवल पे अंडरस्टैंड करते हुए ऊपर जाते हो, सो द चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस टू बी अ CEO, CTO वो बहुत इंप्रूव हो जाता है. क्योंकि एक CEO को ऊपर से लेके नीचे तक सबका सोचना है, एंड एग्जीक्यूशन ऊपर से लेके टू द स्मॉलेस्ट टीम प्लेयर सोचना है. ठीक है, तो बड़े लेवल पे कई बार आप उन चीज़ों को मिस आउट कर सकते हो, बट स्टार्टिंग लो इज नेवर अ चैलेंज. द ओनली थिंग इज अगेन वो लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि मुझे कैसे ग्रो करना है, मैंने कहाँ पहुँचना है, और वो मेहनत कभी कम नहीं होनी चाहिए. चैलेंजेस आएंगे, पॉइंट्स आएंगे लाइफ में जहाँ आपको लगेगा कि बस बहुत हो गया, बट वो बस बहुतों को साइड रख के फिर आगे बढ़ना. तो लोगों ने 8,000 से स्टार्ट करके 45 लाख 50 लाख की सैलरी ले रहे हैं 10-11 साल में. आप लोग भी कर सकते हो. अभी थोड़े दिन पहले मैंने अपनी एक फ्रेंड का ही शेयर किया था. शी इज़ अ प्रोडक्ट मैनेजर. लिंक्डइन पे आप चेक करोगे, आई विल नॉट टेक अ नेम, बट वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा. शी ऑल्सो स्टार्टेड एट अ वेरी डिसेंट सैलरी ऑफ 4 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़, एंड देन रीच टू नाउ अ पैकेज ऑफ अराउंड 55 लाख रुपीज़. गुड है, अच्छा है, क्योंकि लर्निंग एक्सपीरियंसेस के साथ आप आगे बढ़े हो. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो किस लेवल पे स्टार्ट करते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ पहुँचते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे पहुँचते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Thank you so much, sir. And sir, so my next question is, I can ask now? Yeah. So my next question is, sir, like how to build a good CV for our dream company? So a dream company is what first you need to select. Ki this is my dream role, this is my dream company. Then for that dream role, what are the skills? आप अपना फर्स्ट ईयर में वो CV बना लो कि ये ड्रीम कंपनी है, इसमें ये स्किल्स चाहिए, वो स्किल्स मेरे स्किल सेट में लिखे हुए हैं. ये सर्टिफिकेशन चाहिए, ये सर्टिफिकेशंस मेरे कॉलम में लिखी हुई हैं. ये गुड हैबिट्स हैं जो मेरे को बनानी है. जब आपने वो CV बना लिया, वो CV रेडी हो गया. अब आपने सिर्फ टिक लगाना है विद एवरी पासिंग ईयर, एवरी पासिंग सेमेस्टर. क्या मैंने ये अचीव कर लिया? इसके लिए मुझे AWS की सर्टिफिकेशन करनी थी, मैंने लिखा हुआ था CV में. सेकेंड ईयर में करूँगा, क्या मैंने सेकेंड ईयर में AWS की सर्टिफिकेशन कर ली? तो वो CV, ड्रीम CV बनाने के लिए वो रोल फाइनल करके वो ड्रीम जॉब फाइनल कर ली और उसके स्किल सेट लिख लिए, फिर उन पे काम करना शुरू कर दिया. और जैसे जैसे वो काम पूरा होता गया तो वो स्किल सेट ग्रीन होता गया, तब तक उनको रेड पे रखो. वर्ड में आप इतना कर सकते हो, कलरिंग, तो कलरिंग रेड पे रखो. जो जो ग्रीन होता जा रहा है, जब सारा ग्रीन हो गया, या मैं कहूँगा 90% ग्रीन हो गया, यू आर देयर. तो वो ड्रीम CV बनाने के लिए पहले वो ड्रीम फाइनल करना पड़ता है. कई बार हम ड्रीम दूसरों का फाइनल करते हैं कि वो उस लेवल पे था, उसका ड्रीम ये था तो मैं उसको कॉपी करूँगा. नहीं, अपना फाइनल करो, अपने आप रिसर्च करो, अपना CV बनाओ और फिर उसको ग्रीन करते जाओ, ग्रीन करते जाओ. जितना ग्रीन बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. एंड व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एन इंटरव्यूअर एंड यू टेल देम कि मैंने ये रोल देख के स्किल्स फाइनल किए थे और फिर मैंने धीरे धीरे फर्स्ट सेमेस्टर में ये स्किल लिया, फिर ये स्किल लिया, फिर ये स्किल लिया, वो स्टोरी बताओगे, दे विल अंडरस्टैंड कि कितने मेटिकुलसली आपने काम किया है, एंड यू विल बी द फर्स्ट चॉइस फॉर दैट रोल, फॉर दैट कंपनी. Okay, thank you so much, sir. इसको रैप अप करते हैं. सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माय पॉडकास्ट. एंड सर, आप कुछ टिप्स मेरे को देना चाहते हो जिससे मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं? इनिशिएटिव लिया है, स्टार्ट किया है पॉडकास्ट. देयर वुड बी टाइम्स कि कई बार नहीं मिलेंगे व्यूज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब तुम व्यूज़ के लिए नहीं कर रहे, पहली चीज़ इसको क्लियर रखना. डोंट रन आफ्टर व्यूज़, कंटेंट बनाओ.